تقسیم ہوگا، چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے NFC کی مد میں، ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے۔ صرف یہ NFC میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، باقی جو NHP ہیں یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، وہ رقم اس سے الگ ہے۔ اس NFC کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز، خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے NFC پر۔ نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس NFC پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو، اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ NFC وارڈ کے لیے شرکت کرنی ہے، دوسری طرف احتجاج کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے اس پریس کانفرنس میں، کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق ہے، آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری تمام صحافی برادری کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے۔ جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج، وہ انصاف کے حصول کے لیے ہے، وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے، لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے یہ ہم سب کا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے، آپ نے بھی اٹھانی ہے، میں نے بھی اٹھانی ہے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے مذہبی جماعتوں نے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اٹھانی ہے وہ آواز، اور آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھنا ہے۔ ٹیمپرمنٹ کیا آپ مطلب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریفیوز کر رہے ہیں آپ کی ملاقات کی گورنمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے، اور کیا یہ کوئی جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ مے 9 واز اے ٹریپ، کیا اگر آپ کوئی حد کراس کرتے ہیں تو کیا آپ ذہن میں ہے کہ دس وڈ بی انادر ٹریپ؟ دیکھیں جی، یہ تو صاف بات ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ سہیل صاحب، میرا 2 مختصر کوشچن ہے۔ فرسٹ کوشچن جو ہے کہ سیاسی جماعتوں میں فیصلے جو احتجاج کے یا جو دیگر اہم فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کی تنظیم کرتے ہیں، آپ نے اڈیالہ کے سامنے احتجاج کی رات بھی گزاری، پارٹی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں تھی، اس حوالے سے پارٹی ورکر بھی مختلف تکلیفیں کرتی ہے، یہ ذرا کلیئر کریں کہ پارٹی کو آپ لوگ کیوں آن بورڈ نہیں رکھتے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ NFC کے حوالے سے KP گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات کہ احتجاج آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تنظیم کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے بحیثیت ورکر ان کا مکمل ساتھ دینا ہے۔
हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरअमन सुबह तक अडियाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाज़ी सलूक था। क्योंकि इससे पहले आप जिस तरह आपको पता है कि बाकी वज़ीर आला उनको पाकिस्तान एयर फोर्स का जहाज़ इधर से उधर लेकर जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, आपके वज़ीर आला का, आप सबके वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तो ये इम्तियाज़ी सलूक जो है हो रहा है, और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज, जो हमें आइन और कानून इजाज़त देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं, उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है एक दफ़ा। कल उसके बारे में जो है अवार्ड के लाएअमल के बारे में कल हमारी तफसीलन मुलाकात एक दफ़ा फिर हो चुकी है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, और कल जो है असम्बली सेशन में इस पर इंशाल्लाह बहस भी होगी। उसके बाद जो है असम्बली को इस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और तमाम मेंबर्स, पूरी असम्बली को इस पर ब्रीफिंग भी देगी। और हमने कोशिश करनी है कि हमने सिर्फ सूबाई हुकूमत के मेंबर्स को या असम्बली के मेंबर्स को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के हर नौजवान को इसके बारे में बताना है, और उनको कहना है कि ये आप लोगों का हक है, और आप लोगों को आपका आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। देने जा रहे हैं वन बाय वन। वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मंगल के दिन जो यहाँ से मोटरवे से आपका एहतजाजी जुलूस पहुंचने की हिदायत होगी या कहीं खेती की? देखिए जी, उनका जो तंजीम का फैसला है, अभी तक जो है वो सवाबी का है, और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे, वहाँ पर वर्कर नहीं जाएगा, वहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लॉ एंड ऑर्डर का सर। दिल्ली के हिसाब से आपको पता है रात को भी इंकर्जन का वो इन्फिल्ट्रेशन की एक अटेम्प्ट फॉइल हुई है वेस्टर्न बॉर्डर पर। उसके हवाले से जरा बताएं कि खान साहब के अलावा भी और कुछ करना है, लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए हम बिल्कुल आधा खैबर पख्तूनख्वा नहीं खोए हैं, और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है एक बंदे के हाथ में गए, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि गवर्नेंस हो रही है तो डिलीवरी हो रही है तो परफॉर्मेंस हो रही है, तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो इश्यूज़ मैंने तकरीबन 45 दिनों में उठाए हैं, जो हमारा CRBC है, जो हमारा कबायली अजला का शेयर है 3% डिविजिबल पूल में, इसके अलावा जो हमारा NHP है, ये तमाम चीज़ें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम इतना परफॉर्म कर पाए हैं कि तीसरी दफ़ा हुकूमत में है। आप ज़रा सोचें कि ये 3000 अरब रुपए से ज़्यादा जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है
वो फेडरल हुकूमत कर रही है, जिसका IMF गवाही भी दे रहा है और उनका चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5,300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा लोग नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। बताएं कि आप मंगल के दिन जा रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो फिर मंगल को भी अगर ना छोड़ा कि आपकी क्या एक्सपेंशन होगी। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट साहब के दौर में भी यहाँ पर एक पार्लिमानी जिरगा तश्कील दिया गया था, सूबे के जो हुकूक थे उसको लेकर वो जिरगे की सूरज वफाक के पास गए थे। क्या आपका भी ऐसा कोई इरादा है? देखिए जी, आपने क्या पूछा? एकदम मंगल क्या मंगल को अगर ना छोड़ा। अच्छा, मंगल को इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। थैंक यू जी, थैंक यू। शफी साहब एक सवाल नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए आपकी मुलाकात नहीं हुई। आपको मजीद 3-4 दिन से ताखीर का शिकार है, तो क्या जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा आपकी मुलाकात नहीं होगी? आपका सवाल तो ये है। और स्पीकर साहब, आपकी पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट है यानी सोशल मीडिया, आप सबको जानते हैं, इसके बावजूद आपने अपनी टीम भेज दी आर्मी चीफ से मिलने के लिए। डिप्टी स्पीकर साहबा के बारे में जो कुछ आपका सोशल मीडिया कह रहा है, तो क्यों भेजा इन लोगों को फिर वहां पे कुछ ऑर्डर के बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CM साहब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता दें, इसके जवाब में देखें इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फौज को हम इंडिया की फौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फौज समझते हैं। और ये इसरा के तहत NDU में इसरा के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तहत तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है